सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Телеканал «Россия», прямой эфир. Наступившее лето мировые провидцы называют точкой отсчета нового времени и больших перемен для каждого из нас. Самые известные индийские астрологи сделали свои прогнозы и только для нашей программы рассказали, что будет в следующие 20 лет. А в нашей студии всемирно известный индийский астролог Пунит Наката. В конце прошлого года он сделал несколько шокирующих предсказаний, которые не так давно сбылись и потрясли весь мир. Я знаю, что вы подготовили астрологические карты. Это астрологическая карта и нашей страны, России, и Соединенных Штатов Америки. We can start with Russia. Можем начать с России. This is the Jupiter period. Смотрите, вот это период Юпитера. Самое большое изменение начнется с апреля 26 года. И сейчас между 24 и 26 годами It's a preparation. это подготовка. And from 2026 И потом с 26 года до октября 28 года everything will change. все изменится. Лидерство, взаимоотношения в мире, общий рост, он очень сильно изменится. А что произойдет 5 апреля 2026 года? Вы прямо выделили отдельно эту дату? Exactly in the day. Нет, это не дата как таковая, это начало изменений. Changes like how the Будет international изменяться image of вообще Russia comes международный out. имидж страны, Change будет in изменение в туризме. Russia will become very interesting Россия country to станет actually очень like. интересной It will страной attract lot of tourism. и будет ये वीडियो है रशिया की कैपिटल मॉस्को के एक न्यूज चैनल की, जिसके बारे में हम लगातार जान रहे हैं। लेकिन हाल ही में रशियन मीडिया के दो पत्रकारों ने फिर से भारत के एक हिंदू को इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के बारे में जानने के लिए। रशिया के द्वारा इनवाइट किया गया ये हिंदू बहुत ही स्ट्रिक्ट भविष्यवाणियां करता है, इसलिए रशिया में इनकी हाइप बहुत ही ज्यादा है दूसरे भारतीय हिंदू एस्ट्रोलॉजर की तरह। Пунит. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. А как вы предсказываете события? I look at the astrological chart, I Я analyze them. смотрю астрологические карты, анализирую их. Вас все называют Нострадамусом из Индии, потому что ваши прогнозы всегда сбываются. Вот тяжело от такой ответственности перед всем миром. Вас же слушают миллионы. I'm not the creator, why should I feel heavy? Я не создатель, почему я должен это? It's not in my hand. If it was not in my Судьба не hand, находится в моих руках. nobody Если would бы be unhappy. я мог на это повлиять, я бы не оставил никого несчастным. So I try my best to give the best direction possible. Я стараюсь. जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस में लगातार बात कर रहे हैं, इसलिए इनको पल भर देखने से ही रशियन खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि ये हिंदू भारत से ज्यादा रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी स्टिक भविष्यवाणियों के लिए। इसलिए रशियन लोगों के बीच इनकी हाइप इतनी ज्यादा बनी हुई है कि रशिया के अलग अलग टीवी चैनल्स और टीवी शो को इनवाइट करना पड़ता है इनको रशिया के बारे में जानने के लिए। यहाँ तक कि रशियन लोग इनको देखकर इतना ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि लाइव टीवी शो पर भी इनसे इनकी प्रेडिक्शन के बारे में डायरेक्ट प्रश्न करते हैं कि ये हिंदू ये सब असंभव और दिमाग से चीजों को ये कैसे पॉसिबल कर सकता है। तो यहाँ पर आप सबके मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि ये दोनों रशियन जर्नलिस्ट इतने ज्यादा सीरियस होकर इस हिंदू से डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और मोदी के बारे में ऐसा क्या पूछ रहे हैं जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हिंदू इन रशियन को ट्रंप और अमेरिका के फ्यूचर के बारे में क्या बता रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रशियन इनकी बातों और इनकी भविष्यवाणियों पर क्यों विश्वास करते हैं। ऐसा इन्होंने क्या कर दिखाया जिसके कारण रशियन मीडिया के टॉप पॉपुलर चैनल्स को इनको इनवाइट करना पड़ता है हर बार जब जियोपॉलिटिक्स में कुछ उछाल होता है। तो चलिए देखते हैं। तो रशिया के द्वारा इनवाइट किए गए इस हिंदू का नाम है पुनीत नहाटा। ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट है जिसकी भविष्यवाणियों के ऊपर रशिया बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है, जो भारत में भी अपनी स्टिक भविष्यवाणियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसलिए रशिया ने इनको एक स्पेशल तरीके से इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप और चाइना और भारत के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए कि चाइना क्या भारत के साथ आएगा या फिर अमेरिका और रशिया के साथ जाएगा। तो जब भी रशियन पुनीत नहाटा से इनकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, तब ये रशियन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए बोलते हैं और एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल विजडम की स्टडी करने के लिए बोलते हैं जो हमारे वेदों में मौजूद है। तो रशिया के इस मीडिया चैनल ने इनको यहाँ पर इनवाइट किया था ट्रंप के बदलते बिहेव के कारण कि ट्रंप के डिसीजन के कारण दुनिया के मुख्य देशों पे
क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि ट्रम्प चाइना, भारत और रशिया के बारे में क्या बड़ी प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका से रशिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत के लिए अमेरिका और ट्रम्प कौन सी रुकावटें खड़ी कर सकते हैं और यूएसए पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये दोनों रशियन यहाँ पर इनका स्वागत करते हैं और ये पूछते हैं कि आप हमारे लोगों को अपनी पहले की भविष्यवाणियों के बारे में बताएं जो अब पूरी तरह से सच साबित हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले पुनीत नहाटा ने ये पूरे विश्वास के साथ बताया कि आने वाले अगले 30 से 40 सालों में दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साल 2025 के बाद ट्रम्प के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय संकट आएगा, यानी अमेरिका में आने वाली क्राइसिस के बारे में इन्होंने बताया, जिसका इम्पैक्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों पर होगा, लेकिन इसका रूस और भारत पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चाइना भारत के करीब आएगा और अमेरिका से दूरियां बढ़ती रहेगी। रूस भारत के हमेशा पास रहेगा और अंत में दुनिया पर 3 देश राज करेंगे जिनके नाम हैं भारत, चाइना और रशिया। यानी कि भारत, चाइना और रशिया ही दुनिया के सुपर पावरफुल देश होंगे। और इसके आगे पुनीत ने यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ रशिया की भविष्यवाणियों के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि ये साल रूस के लिए बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि रूस के लिए इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण बुरे परिवर्तन होंगे। रूस के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। वर्ल्ड मैप पर रूस की छवि में कुछ खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन रूस को अपने बुरे समय के लिए जागरूक होना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह सैन्य संघर्ष जो होगा लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही बुरे परिणाम आएंगे, वह भी अगले 10 से 15 वर्षों में। यूक्रेन के साथ साथ दूसरे देशों का भी रूस के साथ तनाव बढ़ेगा, लेकिन भारत हर समय रूस को समर्थन करेगा। तो ये सब भविष्यवाणियां पुनीत कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। यानी कि ये दोनों रशियन जर्नलिस्ट इनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में प्रश्न करते हैं और सनातन के एस्ट्रोलॉजिकल विजडम से ये रूस को स्टिक प्रेडिक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये तो पुनीत का एक बस ट्रेलर मात्र था। जिस बात का अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डर है, उसकी भविष्यवाणी भी पुनीत ने डायरेक्ट यहाँ पर की, जो पूरी तरह से सच साबित होती दिख रही है। और आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से। पुनीत ने यहाँ पर इन दोनों रशियन पत्रकारों को पूरे विश्वास के साथ बताया कि साल 2028 तक ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इन सभी देशों के द्वारा बनाई गई ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ब्रिक्स में दुनिया के कई नए देश शामिल होंगे और वे अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, जो ग्लोबली काफी पावरफुल करेंसी होगी। ब्रिक्स की इस करेंसी का एट प्रेजेंट में ट्रम्प को डर है, जिसके बारे में दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जिसके आने से अमेरिकी डॉलर्स बहुत ही जल्द बुरी तरह से गिर सकता है। लेकिन फिर भी रशिया की करेंसी ग्लोबली यूज करी जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणियां की। तो अब यहाँ पर एक पल के लिए आप ये सोच सकते हैं कि एक हिंदू एस्ट्रोलॉजर पर रशियन कितना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे हिंदू एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात की है और हम लगातार कर भी रहे हैं, जो रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनके बारे में भारतीयों को पता ही नहीं है, क्योंकि भारत में इनको बहुत ही कम भारतीय जानते हैं, लेकिन रशिया में इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। जैसे अर्चना के बारे में हमने हाल ही में बात की थी और भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर के बारे में हमने बात की थी, जो रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो आप सोच के देखिए कि हमारी सनातन की प्राचीन विद्या कितनी ज्यादा काम आ रही है रशिया को, और रशिया इस पर पूरा विश्वास भी कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।